Hey guys, what's up? I'm back with another video in which I will share with you in detail my interview experience at Ernst & Young's for senior data engineer role. So I'm about 4 years experienced in big data technologies. I have worked on implementing and maintaining pipelines that process TBs of data using Python, PySpark, Spark SQL, Airflow, Databricks and some other big data tools. If you have worked on similar skill set, then in this video I'll share with you how you can also get a high paying job at EY. Before we jump into the interview questions, I would like to share that if you are preparing for a company like Walmart Global Tech, then do watch this video. In this, I have shared how I cleared Walmart interview for senior data engineer role. I have shared each and every question along with their solution and also given some tips on how to prepare for the same. Now, let's move on to the overview of the EY interview. So there were a total of 3 rounds including L1, L2 and client round, in which the L1 round and L2 round took place at the same day, but the client round took place a few days after clearing the L2 round. Let's look at the L1 round now. So this round was approx 1 hour long. Primary focus was on your Spark theoretical and PySpark hands-on knowledge, along with some basic Python classes and object questions. Finally, 1 SQL questions. Now let's take a look at each questions. So L1 round shuru hua with some basic Spark questions like what is repartition and coalies, what are different read modes in Spark, what is the difference between map and flat map and what are shared variables in Spark. So ये बहुत ही बेसिक Spark के क्वेश्चंस है जो आपको गूगल करने से आसानी से मिल जाएंगे. बट आई प्रेफर 2 वेबसाइट्स, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में. लेट मी शो यू फर्स्ट. द फर्स्ट वेबसाइट इज डेटाफ्लेयर ट्रेनिंग्स. सो अगर आपको बेसिक से शुरू करना है, स्पार्क आरडीडी क्या होता है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, स्पार्क कॉन्फ, ये सब अगर जानना है तो आई वुड रिकमेंड फर्स्ट टू स्टार्ट विद डेटाफ्लेयर एंड देन मूव ऑन टू द सेकंड वेबसाइट विच इज स्पार्क बाय एग्जांपल, जिसमें स्पार्क का डिटेल ट्यूटोरियल है. इट इंक्लूड्स लाइक डेटा फ्रेम्स, फंक्शंस, डेटा सोर्सेज, बिल्ट इन फंक्शन. सो आपको स्पार्क का कंप्लीट नॉलेज इस वेबसाइट से मिलेगा. एंड इनफैक्ट जो क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन पे अभी आपको दिखाया वो सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे. So moving on to the PySpark question, the question is write a PySpark code to get minimum and maximum marks for each student from the table. So as you can see, student table represent करता है student का नाम and उसके सारे subject and हर subject में कितने marks मिले हैं. So if you can see, S name consists of all the student names and S1, S2, S3, S4 are the subject. So question ये है कि हर student को कितना minimum and कितना maximum marks मिला है, not across all the student but across his own subject. So as you can see, गजनन को maximum marks मिला है 80 and minimum marks मिला है 35. So using PySpark, you have to solve this question. तो जब भी किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम मिनिमम, मैक्सिमम या कोई भी एग्रीगेट फंक्शन देखते हैं तो दिमाग में पहला ग्रुप बाय ही आता है, राइट. बट ग्रुप बाय विल ओनली वर्क अक्रॉस अ पर्टिकुलर रो और अ लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर रोज. बट इस केस में हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम अक्रॉस एवरी कॉलम निकालना है. तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. सो वी हैव ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इनबिल्ट फंक्शंस जो बिना एग्रीगेट करे आप मल्टीपल कॉलम्स के ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ईजिली निकाल सकते हो. सो यू कैन ट्राई दिस आउट वंस, दैट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पाइथन इनहेरिटेंस का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट. एज यू कैन सी, वी हैव 3 क्लासेस. द फर्स्ट वन इज क्लास पेरेंट एंड इसमें एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 1. नाउ देर आर 2 चाइल्ड क्लासेस, क्लास चाइल्ड 1 एंड क्लास चाइल्ड 2. हमें प्रिंट करना है parent.x, child1.x एंड child2.x. सो इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं. मैं आपको हर पार्ट एक करके दिखाऊंगा, बट फर्स्ट पार्ट का आंसर बहुत ही ईजी है, दैट इज 1, 1 एंड 1. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं child1.x को 2 कर दूं, देन व्हाट विल बी द आंसर. सो द आंसर इज 1, 2 एंड 1. सिमिलरली इसी क्वेश्चन में अगर मैं child1.x को असाइन करूँ 2 एंड parent.x को असाइन करूँ 3, तो इसका आंसर क्या आएगा. लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर. 3, 2, 3. नाउ ये ऐसा क्यों हुआ, लेट मी शो यू इन अ प्रैक्टिकल वे. सो व्हेनेवर अ क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास, पेरेंट क्लास के जितने भी वेरिएबल्स या मेथड है उनका एक इंस्टेंस असाइन हो जाता है चाइल्ड क्लास को. सो फर्स्ट पार्ट में child1 एंड child2 इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट के x वेरिएबल को, बट क्योंकि हमने x को अपडेट नहीं करा किसी भी चाइल्ड क्लास के अंदर, तो हमारी वैल्यू
फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है 1 1 एंड 1। अब अगर मैं चाइल्ड 1 डॉट एक्स को अपडेट कर देता हूँ विद लेट्स से वैल्यू 2, देन चाइल्ड 1 में x का जो इंस्टेंस था सिर्फ वो अपडेट हुआ। दैट्स वाई द आंसर इज 1 2 एंड 1। सिमिलरली अगर मैं पेरेंट डॉट एक्स को 3 करता हूँ, नाउ ये पेरेंट के अंदर का x अपडेट हुआ है, नॉट चाइल्ड 1 इंस्टेंस। बट बिकॉज चाइल्ड 2 के इंस्टेंस अब भी पेरेंट 1 का ही x फॉलो कर रहा है, वी हैव नॉट अपडेटेड द चाइल्ड 2 x वैल्यू, सो इसका आंसर रहेगा 3 2 एंड 3। सिमिलरली अगर मैं चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 दोनों को फिर से अपडेट करता हूँ, लेट्स से चाइल्ड 1 डॉट एक्स बिकेम 4 एंड चाइल्ड 2 डॉट एक्स बिकेम 5। अब हमने क्या किया, x इज इंस्टेंस इनसाइड चाइल्ड 1 became 4 and x is instance inside child 2 became 5. So the answer is 3 4 and 5. फाइनली एक और एग्जांपल मैं दूंगा। लेट्स से मैंने पेरेंट डॉट एक्स को 7 कर दिया, अब इसका आंसर क्या होगा, 7 4 एंड 5। सो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं जिसमें आपको इनहेरिटेंस यूज़ करके पेरेंट क्लास के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है या फिर कोई वेरिएबल की वैल्यू को चाइल्ड क्लासेस के थ्रू पास ऑन करना है, तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप लेटेस्ट अपडेट्स देखो। लेटेस्ट पेरेंट का अपडेट है 7, लेटेस्ट चाइल्ड 2 का अपडेट है 5 एंड लेटेस्ट चाइल्ड 1 का अपडेट है 4। सो हर बार जब भी हम किसी भी क्लास के अंदर किसी पेरेंट क्लास का कोई भी वेरिएबल या मेथड का इंस्टेंस को हम अपडेट करेंगे तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वही फॉलो होगा। सो लेट्स से इफ़ आई मेक चाइल्ड 2 एज लेट्स से 8, सो इसका वैल्यू आएगा 7 4 एंड 8। आई होप दिस मेक्स थिंग्स मोर क्लियर। Now let's move on to the final question of L1 round. The question is, write an SQL query to find for each date the number of different products sold and their names. So हमारे पास activities table है with columns called SL date and product, and हर दिन कौन सा product sell हुआ है ये listed है। So output कुछ इस तरह का होगा। For the sell date 2020-06-01 में we sold 2 products and product का नाम है Bible and Pencil. Now let's take a look at the solution. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट ग्रुप बाय नहीं लगा सकते। वी हैव टू गो बिकॉज वी हैव टू ग्रुप ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वर सोल्ड इन अ पर्टिकुलर डे एंड देन फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वर सोल्ड। सो हमने ग्रुप कॉन्कैट यूज़ किया है। सो इफ़ आई गो बाय द सेम एग्जाम्पल 2020-06-01, तो उस दिन पेंसिल एंड बाइबल सेल हुआ। सो मैंने इन दोनों को ग्रुप कॉन्कैट किया बेस्ड ऑन द सेल डेट एंड देन उसका काउंट निकाला। I hope this question is clear. So this was the end of L1 round. Now we will jump on to the L2 round. तो L2 राउंड में मेन फोकस था प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड कौन से प्रोग्रामिंग एंड बिग डेटा टूल्स पे काम किया है उसका डिस्कशन प्राइमरली हुआ। ड्यूरेशन ऑफ दिस राउंड वाज अराउंड 1 hour एंड टॉपिक्स कवर्ड वर मेजरली SQL एंड 1 PySpark क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द इंडिविजुअल क्वेश्चंस। तो L2 राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 डेटा सेट। सो डेटा सेट टेबल 1 एंड टेबल 2 है जिसमें बस एक ही कॉलम है ID। सो सिमेट्रिक डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है एंड इस डायग्राम में जितना भी रेड पोर्शन है दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। सो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम यू माइट नो दैट all we have to do is display all the unequal ID between table 1 and table 2. So this is the solution that we are expecting. So as you can see 1, 3 and 5 जो table 1 में है but table 2 में नहीं है, and 6 and 7 जो table 2 में है but table 1 में नहीं है. So if you understand then it is very easy to solve. So let's take a look at the solution. Here we go. Select star from T1 where ID not in T2, union select star from T2 where ID not in T1. So है ना easy. Now let's move on to the second question. So the second question is write in PySpark how to find and delete duplicates in a dataset. So dataset कुछ इस तरह से है, we have ID and name column and name column के अंदर you can see there are duplicates. For example PWC. So आपका solution कुछ इस तरह से होगा, we have the ID column again and name में जितने भी values थे उनका सिर्फ एक occurrence रहेगा. So in fact we have found out the duplicates and we have got rid of them. So इसका आंसर होगा कुछ इस तरह से. So I have used row number to find out and जहाँ पे भी row number की value 1 है मैं सिर्फ उन्हीं को filter out कर रहा हूँ. So now let's move on to the third question. Coming to the third and final question of L2 round, question is
write an SQL query to display department and employee details for the employee with highest salary and in his or her department. So दोनों का स्कीमा कुछ इस तरह से है. For employee it's ID, name, salary and department ID, and for department it is ID and name. So how I solved it, let's have a look at that. So as you can see, पहले मैंने dense rank calculate किया है for every employee in his or her department based on what salary she or he gets. So जिस भी department में जिस employee का highest salary होगा उसका dense rank allot हो जाएगा 1, एंड उसी तरह मैंने फिर डिपार्टमेंट टेबल से उसको ज्वाइन किया इन ऑर्डर टू गेट द डिपार्टमेंट डिटेल्स, एंड फाइनली मैंने टेंस रैंक इक्वल टू 1 किया इन ऑर्डर टू गेट ईच डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय को हाईएस्ट सैलरी मिलता है. सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन. यू कैन मॉक द डेटा एंड ट्राई इट आउट वंस. इट विल बी मच क्लियर. As I said before, L1 and L2 राउंड सेम डे ही हो गया एंड L2 राउंड क्लियर होने कुछ 2-3 दिन बाद क्लाइंट राउंड हुआ. क्लाइंट राउंड भी अप्रॉक्स 1 घंटे का था एंड इसमें मेन फोकस मेरे पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में दिया. आफ्टर दिस द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी सम स्पार्क थ्योरेटिकल क्वेश्चन. लेट्स टेक अ लुक एट दोस. So the questions are: what are the different optimization techniques used in Spark? What are delta tables? Difference between delta and Parquet tables? How is Databricks catalog? How do you perform initial and incremental load? How would you avoid data loss? And what challenges have you faced in the project and how did you solve it? So इन सारे क्वेश्चंस का ही मैंने एक 1-liner आंसर दिया. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ईजिली गूगल करने से मिल जाएंगे. ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं एंड ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट गिव अ 1-liner आंसर टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. सो ये आपको अपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस और आपके पास्ट एक्सपीरियंस को इंक्लूड करके फ्रेम करना होगा. लाइक व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन योर प्रोजेक्ट एंड नॉट जस्ट योर पास्ट वन प्रोजेक्ट. आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स में कोई भी चैलेंज फेस किया हो. सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज़ राइट डाउन दोज थिंग्स एंड देन फ्रेम एन आंसर आउट ऑफ इट, बिकॉज हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो मैंडेटरी होता है. Now coming to the final question of the client round. Write PySpark code to count the total units used on each date and number of IDs flagged on each date. So you can see the process table here. We have ID, year, month, day and flag and units. So using the year, month, day आपको date पता चल जाएगा. इसी को ही ग्रुप बाई करके आपको फ्लैग एंड यूनिट्स का जो भी कंप्यूटेशन बताया क्वेश्चन में वो कैलकुलेट करना है. सो लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर. As you can see, first मैंने DF process create किया by reading the process table. Then मैंने group by किया based on year, month और day, जिससे मुझे हर दिन में जो भी computation calculate करना है उसका aggregate में नीचे mention कर सकता हूँ. As you can see, I have calculated the sum of units as total units and then calculated the count of the flag as number of flags. So this way you can find out the solution of this particular problem. अगर आपके पास PySpark का environment नहीं है इसको solve करने के लिए, then you can also try to solve this in SQL, in any of the SQL online compiler. Then this question, you will know that this question is very easy actually. So that's it for the client round. जो वेबसाइट्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप उन्हीं वेबसाइट्स में ऑलमोस्ट सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. एंड इफ यू वांट टू अपस्किल इन एसक्यूएल देन आईड सजेस्ट आप लीड कोड पे एसक्यूएल मीडियम एंड इजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. देन आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन PySpark टू गेट कॉन्फिडेंस इन PySpark एज वेल. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू. If you found it informative and helpful, please like and share with your friends who are preparing for a data engineer role, and I'll see you next time.